Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to your social studies class for grade 5. Today we are going to read unit number 11, The Struggle for Independence, page number 114 to 119. This is the part A of the video reading. Now open your new Oxford Social Studies for Pakistan grade 5, page number 1114. The struggles for independence, आज़ादी के लिए जंग, यूरोपियंस एंड द सब कॉन्टिनेंट्स, यूरोपीय और बरसग़ीर. The first European visitor to the subcontinent were the Portuguese traders who arrived here during the 16th century. They landed on the west coast of India and were amazed by what they saw. A land rich in spices, foods, cloths of different colors and textures, fabulous ornaments and jewelry. The local people were friendly and treated the travelers with courtesy and respect. The traders exchanged goods with the local people and many returned to Europe. The first among the Portuguese was Vasco da Gama, who landed at Calicut on the west coast of India in 1948. In 1600, Sir Thomas Roy came as an ambassador of Queen Elizabeth I of England to the court of the Mughal Emperor Jahangir. In December 1600, Queen Elizabeth granted a charter to set up the East India Company. Soon afterward, during 17th century, other traders came and some of them settled here. Among these were the Dutch, the French and the British. Some of the traders, such as the East India Company, began to do business on a large scale. By the 18th century, the power of Mughal Emperor had begun to decrease as the Mughal grew weaker. The minor rulers in the north, the Rajput, the Marathas, and the Sikhs became restless, and the Muslims nobles fought among themselves. From the middle of the 18th century, the British rose to power by defeating the local prince and the French. That was beginning of 200 years of British rule. 16वीं सदी में सबसे पहले यूरोपियन जो बरसग़ीर में आए वो पुर्तगाली थे, सौदागर थे. जब वो मगरबी इंडिया के मगरबी साहिल पर उतरे तो वो देख के हैरान रह गए कि ये ज़मीन जो थी वो बहुत ही माला माल थी, मसालों से, फलों से, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों से और बहुत ही शानदार किस्म की ज्वेलरी से, ज़ेवरात से. लोकल पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा ही दोस्ताना थे और वो मुसाफिरों से की बहुत इज़्ज़त करते थे. जो सौदागर थे उन्होंने यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ तिजारत कुछ चीज़ें एक्सचेंज की और वापस चले गए. सबसे पहले जो था वास्को डा गामा जो था वो यहाँ पर उतरा था 1948 में मगरबी साहिल पर. 1600 में सर थॉमस रॉय जो थे वो मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के सफ़ीर बनकर यहाँ पर आए और 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ ने यहाँ पर एक कंपनी खोलने का फरमान जारी कर दिया. उसके बाद 17वीं सदी में बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे जिनमें डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे. कुछ ट्रेडर्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कारोबार करना शुरू कर दिया. 18वीं सदी में मुग़ल एम्परर जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गई और उनके जो शुमाल में जो छोटे छोटे हुक्मरान थे जैसे कि राजपूत, मराठा और सिख हैं वो जो है में काबू हो गए थे और मुसलमान जो है वो उमरा जो है वो आपस में लड़ने लग गए थे. 18वीं सदी के दरमियान में ब्रिटिश पावर ने मुकामी शहजादों को शिकस्त दे दी और ये यहाँ से बरतानिया की यानी कि अंग्रेज़ों की 200 साल हुकूमत का आगाज़ होता है. The British government decided to take over the East India Company and slowly they too become involved in politics. By the middle of 19th century, the British government began to rule the whole subcontinent. The British had come to the subcontinent as trader but ended up bringing the whole region under their power. They introduced their language, architecture, politics and their ideas. They built roads, railways, large buildings, but the people of subcontinents were never free and happy living under the rule of foreign powers. They did not like new rules but because they felt that British had no right to run their country. However, it was difficult to fight against the British because the local people were not united. इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर देगी. 19वीं सदी के दरमियान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे जो है वो बरसग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट तो आई तो सौदागर बन गई, तिजारत करने आई थी, लेकिन उन्होंने पूरे रीजन पर अपनी ताकत से कब्ज़ा कर लिया. उन्होंने वहाँ पर नई ज़ुबान, आर्किटेक्चर और सियासत और अपने
आइडियाज़ मुतारिफ़ करवाने, ख़यालात मुतारिफ़ कर उन्होंने रोडें बनाई, रेलवेज़ बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। लेकिन जो लोग थे वहाँ रहते थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ पर आज़ाद नहीं थे। वो किसी गैर मुल्की ताकत के ज़ेर असर थे। वो ने जो हुक्मरान थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके ख़्याल में वो यहाँ पर उनकी जो मुल्क है उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं। ताहम उनसे लड़ना, ब्रिटिश से लड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो लोग मुकामी लोग थे वो आपस में उनमें इत्तेहाद नहीं था। द वार ऑन इंडिपेंडेंस 1857, द ब्रिटिश गवर्नमेंट द सबकॉन हैड अ लार्ज आर्मी हुज ऑफिसर वर ऑल ब्रिटिश, द सोल्जर वर हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। इन 1857 a certain event took place that led to the soldier revolts. The soldier was issued with rifle. Those greased bullets had to be bitten for loading. The bullets were greased with animal fat, and both Muslims and Hindus object as lard forbidden to Muslims and cow fat to Hindus. When the British reacted severely to the soldier refusal and punished them, they come in open defense. The battle that they fought is called the War of Independence 1857. Many soldiers, both Indian and British, were killed. The Mughal king Bahadur Shah Zafar was an old man. He was captured by the British and sent away in exile to Rangoon in Myanmar, where he died and is buried. The British then took over the country and appointed viceroys to rule. When the war came to an end in 1858, the British government realized that it had to improve things in subcontinent. Railway lines were built, and one of the biggest railway network of its time spread across India. Telegraph lines were also put up for speedy exchange of news. Education of the British pattern was introduced. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की जो है वो बहुत बड़ी फ़ौज जो थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में थी, और तमाम के तमाम उनके ऑफिस जो थे वो ब्रिटिश थे। सोल्जर्स जो उनके सिपाही जो हैं वो हिंदू, मुस्लिम और सिख थे। 1857 की जंग जो है 1857 में बहुत सारे जो है वो वाक़यात हुए, जिनमें से एक सिपाहियों की बगावत थी। सिपाहियों की बगावत की सबसे बड़ी वजह थी कि उनने ब्रिटिश ने जो उनको गन्स दी थी वो तब चलती थी जब उनके ऊपर लगी हुई चर्बी जो है जानवरों की उनसे मुंह से काटा जाता था, जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। जब उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया तो उनको सज़ा दी गई, जो इनकी नाफरमानी की वजह से दी गई थी। और यही वजह जो है वो 1857 की जंग आज़ादी की वजह बनी। बहुत से इंडियन और ब्रिटिश जो फ़ौजी हैं वो इस जंग में मारे गए थे। मुग़ल किंग जो आखिरी था बहादुर शाह ज़फ़र बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, और तो उसको कैद कर दिया गया और यहाँ से रंगून जो म्यांमार में वहाँ पर उसको जिला वतन कर दिया गया। जहाँ वो मरा वहीं पर उसको दफन किया गया। 1858 में जब ये जंग ख़त्म होगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने रेलवेज बनाई, वहाँ पर टेलीग्राफ लाइंस बनवाई और उन्हें एजुकेशन को अपने पैटर्न पर मुतारिफ़ करवाया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बाद उन लोगों वहाँ के लोगों को जो तालीम याफ्ता हैं उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि ब्रिटिश से लड़ने के लिए उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठे होने के लिए उन्हें एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, पॉलिटिकल। तो उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक पार्टी बनाई, जो दिन ब दिन बहुत तरक्की करती गई, हत्ता कि यहाँ लेकिन जो ब्रिटिश थे वैसे खुश नहीं थे। वो उनकी जो स्पीचेस करते थे या कुछ भी बोलते थे तो उनकी वजह से उनके लीडर्स को वो अरेस्ट भी करते थे और उनको जेल भी भेजते थे। लेकिन जब वो बाहर आते थे वो दोबारा उनके खिलाफ तकरीरें करते थे। नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। फिर 1972 में उसके जो लीडर है मोहनदास गांधी जो है, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, जो कि ब्रिटिश के लिए थी कि वो अब बरसगीर छोड़ दें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके बाद नेशनल कांग्रेस के बहुत से मुस्लिम जो थे वो हिंदू थे। 1906 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसमें मुस्लिम लीडर्स ने जो सोचा कि इंडिया की जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोच रही है। वो चाहती हैं कि जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो इंडिया वो यहाँ पर हुकूमत करेंगे और मुसलमानों को दोबारा वैसे ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी हिंदुओं के नीचे रहकर। तो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाने का सोचा जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था।
मुसलमान के कायदीन जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो बहुत बड़े शायर और फ़िलासफ़र थे, नवाब वकार मौलाना मोहम्मद अली जो, लियाकत अली ख़ान, ज़फ़र अली ख़ान, इन सब ने बहुत सारी तकरीरें की और लिखाई और बहुत सारे उन्होंने मुकालमे या लिखे, जिनमें उन्होंने बताया कि उन्हें भी एक अलग रास्ता चाहिए जहाँ वो अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस तरह मार्च 1940 में लाहौर में एक बहुत ही तारीख़ी मीटिंग हुई जिसमें करारदाद पाकिस्तान पास की गई और इसमें बताया गया कि मुसलमानों को भी बरसग़ीर में अपना अलहदा मुल्क इंडिपेंडेंस आज़ादी बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारे फ़ैसलों के बाद जो है मुसलमान जो हैं वो मुसलमान और हिंदू दोनों ने अपना अलग वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। कमीशन बनाया गया जिनने दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स बनाए। उसके बाद 2 कंट्रीज़ बन गई, पाकिस्तान और एक इंडिया। जिन इलाकों में ज़्यादा मुसलमान थे वहाँ वो पाकिस्तान में आके, जिनमें ज़्यादा हिंदू थे वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए। उसके बाद बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया और हिंदुस्तान जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। इसके बाद पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में दोबारा बढ़ गया, जिसमें एक मशरक़ी पाकिस्तान था और एक मगरबी पाकिस्तान था। पाकिस्तान की आज़ादी में जिन जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया उनमें एक सर सैयद अहमद ख़ान थे जो दिल्ली में 7 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। वो बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थे और वो जज थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे ताकि मुसलमान और ब्रिटिश जो है एक दूसरे को जान लें। उन्होंने जंग अज़ीम जो है 1857 की, उसकी वजूहात भी लिखी जिसकी वजह से मुसलमान हिंदू जो है वो ब्रिटिश से लड़ रहे थे ताकि उनके दरमियान जो है थोड़े से इख्तलाफात। उन्होंने मुसलमानों को तालीम देने के लिए कॉलेज या स्कूल भी बनाए ताकि मुसलमान जदीद तालीम हासिल कर सकें। वो 27 मार्च 1898 में वफ़ात पा गए। उसके बाद अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने पाकिस्तान का आइडिया पेश किया। वो सियालकोट में पैदा हुए थे और उन्होंने जो है यूके से लिटरेचर की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लिंकन इन से जो है उन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी। वो 21 अप्रैल 1938 में वफ़ात पर उनका जो मज़ार है वो पाशाह मस्जिद लाहौर के करीब है। उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जो है वो उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है क्योंकि उन्हीं की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। वो 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे। उन्होंने लंदन से कानून की डिग्री हासिल की थी और वापस वो मुंबई आए थे, वहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस शुरू की थी। 1909 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्ट हो गए थे। आज़ादी की जंग में मुसलमान और हिंदू बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ था, तो उन्होंने मुसलमानों और हिंदू को आपस में मिलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि हिंदू जो है वो मुसलमानों का फ़ायदा नहीं चाहते। उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो मुस्लिम लीग पर दी और मुसलमानों के अलहदा वतन के जो है वो हासिल करने में दी। बहुत सारे प्रोटेस्ट एहतजाज करने के बाद और बहुत सारी पॉलिटिकल जो है लीडर्स उन्होंने मेहनत करने के बाद आखिरकार ब्रिटिश जो है वो सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करने में के लिए राज़ी हो गए और कायद आज़म की मेहनत की वजह से पाकिस्तान आज कायम है। कायद आज़म 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए और उनका मकबरा जो है वो कराची में है।